Hello, students. I hope you all are safe at your home. Today I am going to explain you chapter 2, The Sound of Music, part first. This chapter has two parts. Today we will discuss part first, The Sound of Music. It means संगीत की आवाज. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Jostle, it means push roughly, धक्का देना, धक्का मुक्की करना. Slight, small and thin, it means कमजोर. Vibration, as you know, shaking, कंपन. Approaching, it means coming nearer in distance or time, पास में आना, समीप आना. Prestigious, it means honorable, प्रतिष्ठित, जो सम्मानित होता है. Daunting, it means frightening, डरना. Aspiring musician, it means a person who wants to be a musician, एक person जो musician बनना चाहता है. Conceal, it means hide, छिपाना. Profoundly deaf, it means unable to hear, it means बिल्कुल बहरा, जिसे कुछ भी सुनाई ना देता हो. Deteriorated, it means damaged, बिगड़ी. Urged, advise, सलाह. Specialist, it means expert. Impaired, it means damaged. Gradual, it means slow, धीरे धीरे. Nerve, नस, जो हमारी बॉडी में नर्व होती हैं, नसें होती हैं. Damage, it means harm, नुकसान. Lead, it means guide, नेतृत्व. Pursue, it means follow or run after, it means आगे बढ़ाना. Xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर लकड़ी के डिफरेंट लेंथ की बार्स होती हैं, कीज होती हैं. डिस्करेज, इट मीन्स टू लूज कॉन्फिडेंस, हिम्मत तोड़ना. नेक्स्ट, परकॉशनिस्ट, अ पर्सन हु प्ले द ड्रम एंड द तबला एक्सेट्रा, एक पर्सन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम और तबला बजाता है, वी कैन से ताल वादक. पोटेंशियल, इट मीन्स पॉसिबल. ट्यूनिंग, एज यू नो, ट्यूनिंग म्यूजिक में होती है, द एक्शन ट्यूनिंग. शीर, इट मीन्स कंप्लीट, पूर्ण रूप से परिपूर्ण. ऑर्केस्ट्रा, दिस इज द ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियन, वी कैन से बैंड. Auditioned, it means to give a short performance to show that you are suitable for a play or film. As you know, you have seen many reality shows, जो छोटी सी परफॉर्मेंस दी जाती है ये शो करने के लिए कि मैं इस फिल्म और प्ले के लिए सुटेबल हूँ, दैट इज ऑडिशन. स्कॉर्ड, इट मीन्स गेन या गेट. कैप्चर्ड, इट मीन्स टेक इनटू वंस पोजीशन, पकड़ा जाना, किसी पर पोजीशन लेना. Now let's start the chapter, The Sound of Music, संगीत की आवाज, part first. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie, she is a girl, she can listen the sounds without hearing. वो आवाज़ों को, वो जो sounds होती थी उन्हें बिना सुने feel कर सकती थी, समझ सकती थी. Before you read, before starting the chapter, let's discuss some points. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. God ने उसकी जो hearing power थी वो ले ली थी, लेकिन उसे बहुत ही extraordinary thing इसके बदले में दी थी. कुछ ऐसा दिया था जो बहुत ही extraordinary था. What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं उन्हें वो फील करती थी और हमसे ज़्यादा गहराई से. She can feel the sound, she can feel the music deeply than us. That is why she expressed music so beautifully. This is the reason, यही रीज़न था कि वो जो म्यूज़िक था उसे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती थी, because she can feel the sounds. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Let's read the story. जहाँ एक पर्सन ने अपनी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी उसे, उसके साथ में स्ट्रगल किया
और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया, बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी उसने बनाया। रश आवर्स crowds jostle for position on the underground train platform। बहुत ही रश आवर्स थे, बहुत ही भीड़ थी वहाँ पर। जो लोग थे वो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर अपनी पोजीशन लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अ स्लाइट गर्ल looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक 17 years की पतली सी लड़की जो कि अपनी एज से छोटी दिखाई देती थी, वो भी वहाँ उस भीड़ में थी, जो बहुत ही नर्वस थी लेकिन साथ ही में वो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वो जो ट्रेन आने वाली थी उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पा रही थी। शी कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रेन इज कमिंग। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में जो रॉयल अकेडमी थी म्यूजिक की, उसमें उसका पहला डे था, फर्स्ट डे था। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। एक Scottish farm, this is the name of the place। Scottish farm के टीनेजर के लिए ये बहुत ही नर्वस करने वाला मोमेंट था, because she belongs to a very small town and now she is going to the प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। सबसे जो फेमस रॉयल अकेडमी थी म्यूज़िक की, अब वो वहाँ पर जा रही थी, उसका फर्स्ट डे था। So she became a little bit nervous. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most। She was profoundly deaf। लेकिन जो ये aspiring musician थी, as I told you, जो musician बनना चाहता है, that is called aspiring musician। उसे एक बहुत ही बड़े चैलेंज को फेस करना था, क्योंकि वो कम्प्लीटली डीफ थी, पूरी तरह से डीफ थी, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो हियरिंग का लॉस था, हियरिंग पावर जो उसने खोई थी, वो धीरे धीरे खोई थी। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। उसकी मदर को याद है जब उसने नोटिस किया था कि उस 8 ईयर की जो लड़की है एवलिन, उसके साथ में कुछ रॉन्ग है। कब? जब वो पियानो प्ले करने का वेट कर रही थी। When Evelyn is waiting to play the piano, then her mother noticed that she can't hear। They called her name and she didn't move। जो मदर है और उसकी जो टीचर्स है वो उसका नेम बुला रहे थे, बट वो मूव नहीं कर रही थी। आफ्टर लिसनिंग वी रिएक्ट, जब भी हम लिसन करते हैं किसी साउंड को तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, बट शी इज़ नॉट रिएक्टिंग ऑन द साउंड। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। अचानक से मैंने फील किया, हर मदर इज सेइंग दिस, उसकी माँ कह रही है कि मैंने अचानक ये महसूस किया कि वो सुन नहीं सकती। सेज ईसाबेल ग्लेनी। ईसाबेल ग्लेनी उसकी जो मदर हैं वो कह रही हैं कि अचानक मुझे फील हुआ, अचानक से मैंने महसूस किया कि ये जो गर्ल है एवलिन ग्लेनी, ये सुन नहीं सकती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस। कुछ समय तक जो एवलिन है उसने मैनेज कर लिया था अपनी बढ़ती हुई जो डीफनेस था उसको छुपाने में। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड्स से और टीचर से थोड़े समय के लिए वो अपनी ये जो डिसेबिलिटी थी इसे छुपा पाई थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन जब वो 11 ईयर्स की थी और उसके जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा डेटोरेटेड, इट मीन्स बिगड़ गए थे, खराब आए थे, तब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने एडवाइस दी उसके पेरेंट्स को कि इसे किसी स्पेशलिस्ट को तुम्हें दिखाना चाहिए, यू हैव टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और
जब उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया तो ये डिस्कवर किया गया, ये पता लगा कि जो धीरे धीरे उसकी जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी हियरिंग पावर चली गई थी. दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स. उन्हें एडवाइस दी गई कि ये जो गर्ल है इसे हियरिंग एड्स, सुनने के लिए जो मशीनें हैं उनका यूज़ करना चाहिए. एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और इसे जो डीफ बच्चों के लिए स्कूल होती है, बहरे बच्चों के लिए स्कूल होती है, वहाँ पर भेज देना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन कहती है कि ये सुनने के बाद में कि मुझे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा, मुझे एक डीफ स्कूल में भेज देना चाहिए, मुझे हियरिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए. इट मीन्स वो कम्प्लीटली डीफ हो चुकी थी. वो कहती हैं कि सब कुछ मुझे बिल्कुल ब्लैक दिखाई देने लगा था. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन जो है वो गिव अप करने वाली नहीं थी, हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज determined टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूजिक. एवलिन बिल्कुल determined थी कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ और जो मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन एवलिन ने एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने डिसाइड किया कि मैं भी जाइलोफोन को ही प्ले करूँगी, मैं भी यही करना चाहती हूँ. यू कैन सी हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ जाइलोफोन. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे जो टीचर्स थे उन्होंने उसे डिस्करेज किया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती. बट एक परकॉशनिस्ट जो एक ताल वादक थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसके अंदर जो पोटेंशियल थी, जो उसकी एबिलिटीज़ थी, उन्हें पहचान लिया. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. उन्होंने शुरू किया ट्यूनिंग को, डिफरेंट हाइट पर 2 अलग अलग ड्रम रखे और उन्हें अलग अलग साउंड पर प्ले किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. वो कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. इन्हें किसी अलग तरीके से सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up. अचानक से मैंने फील किया, ये एवलिन कह रही हैं कि जब रॉन फॉर्ब्स ड्रम्स को प्ले कर रहे थे डिफरेंट प्लेस पर रखकर और डिफरेंट साउंड में उन्हें प्ले कर रहे थे, कोई हाई और एक को लो पर, तब अचानक से एवलिन ने ये फील किया कि वो जो हायर ड्रम था उसे वो अपनी वेस्ट के, अपनी कमर के ऊपर वाले हिस्से पर उसकी जो वाइब्रेशंस थी उनको वो फील कर सकती थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो नीचे ड्रम था उसे वो अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से पर फील कर पा रही थी. इट मीन्स शी कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द ड्रम, वाइब्रेशन ऑफ द साउंड्स विद द हेल्प ऑफ हर बॉडी पार्ट्स. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने ये जो मूवमेंट था, ये जो ड्रम प्ले करने वाला था, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का मूवमेंट था, उसे कंटिन्यू रखा, रिपीट करते रहे वो, और जल्द ही एवलिन ने ये डिस्कवर किया कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट टाइप की जो वाइब्रेशंस हैं, डिफरेंट जो नोट्स हैं, उन्हें फील कर सकती है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. एवलिन कहती है कि मैंने अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को बिल्कुल ओपन कर दिया था साउंड्स और वाइब्रेशंस को सीखने के लिए. बिल्कुल मैं अपनी बॉडी के हर पार्ट से उन वाइब्रेशंस को फील करना चाहती थी. द रेस्ट वॉज शीर डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. जो रिमेन काम था, मीन्स मेरी सक्सेस का जो बचा हुआ पार्ट था उसे कंप्लीट करने में मेरा जो पूर्ण रूप से मैंने डेटरमाइन किया हुआ था, दृढ़ निश्चय मैंने किया हुआ था, उसने और मेरे हार्ड वर्क ने वर्क किया. इट मीन्स आई गेट सक्सेस विद द हेल्प ऑफ माई शीर डेटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. Okay students, remain part we will discuss in our next video. I hope you understand. Thank you and have a nice day.